inside and outside. Krishna. You're going through some kind of a phase where things didn't happen the way you thought. Instead, it happened for the highest goods. And you're in a stage where you're contemplating the ifs and buts. The message is there is a spiritual intelligence. Mercury is very, very intelligent. I've been connected to somebody जिनका बहुत powerful intelligence है, बुद्धिमान, बुद्धि आपकी सबसे बड़ी quality है. There is a spiritual intelligence within your soul. It is a genius of becoming. Wow, you're a genius. Reiteration of your potential into manifestation, glorious manifestation, beautiful. You've been in a stage where you're receiving from every corner. Someone who's born with Vani, Vani का वरदान, अच्छे गीतकार हो सकते हैं, बहुत पावरफुल स्पीकर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, स्पिरिचुअली काफ़ी इंटिमिडेटेड हैं. Intimate communion with your own heart will reveal what it is you truly yearns for and set the process in motion for the yearning to be satisfied. I've been connected to a few of you in the collective जो ना yearn कर रहे हैं but उनको ये नहीं पता उनको क्या चाहिए. कुछ confusions हैं, कुछ situations हैं, कुछ भावनाएं हैं. हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा के बीच में ब्रिज नहीं है. महसूस बहुत करते हैं बट confusions हैं. The holy fire is Kali and she is within your soul. अपनी yearning को follow कीजिए. Seek the light. Let yourself burn bright for what inspires you. And you shall see the path to fruition clearly before you. Yes, indeed. Life is beautiful. However, जब हम किसी situation scenario में परिस्थितियों में स्ट्रगल करते हैं तो ये नहीं समझ में आता चाहिए क्या. ऐसा होता है, कई बार होता है. अगर आपको क्लैरिटी है, यूनिवर्स आपके सामने रास्तों को प्रकट कर देते हैं और जो आपको इंस्पायर करे. नॉट दैट यू आर फॉलोइंग सम मासेस. आपको अपने हार्ट से कनेक्ट करने की आवश्यकता है और बिलीव करने की आवश्यकता है. थोड़ा लैक कर रहे हैं ट्रस्ट अपने रास्तों पे शायद इस समय आप. यू आर फायर, अग्नि, पैशन, एक्शन, इंटेलिजेंस, पावरफुल. Agni is the two-headed deity of fire and potent symbol of supernatural power. On the physical level, fire generates light and heat to cook food, thereby representing both transformation and nourishment of this life. The inner digestive fires that metabolize food and allow us to gain nutrients represents the inner nourishment of fire and symbolize the soul's need to digest our life experiences for spiritual growth. कोई ऐसा सिचुएशन हुआ है आपकी लाइफ में, अभी हुआ है या होने वाला है, जो बहुत स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देकर गया है? मतलब आपको लग रहा है ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, बट अगर आप उस बारे में आत्ममंथन करेंगे या सिचुएशन को डिकोड करेंगे तो आपने बहुत, मे बी नॉट इन द रियल लाइफ यू आर फीलिंग दैट चीज़ें आपके फेवर में थी या हैं, but in your spiritual world, in your spiritual growth, this is a very powerful transformation जो आपने एक्सपीरियंस किया है. लॉजिक को समझ नहीं आ रहा है, आत्मा देख पा रही है. Fire can create purification for regeneration such as that seen in a forest after it simultaneously burns away old growth and stimulates new seeds. और अब नए बीज आएंगे और फिर पेड़ बनेंगे. चिंता नहीं करनी. In that sense, it is also the power of reaping, of bringing something from an idea or potential into fruition and fulfillment of innate purpose.
मैं किसी से कनेक्ट कर रही हूँ जो बहुत पर्पस ड्रिवन है, जो बहुत इंस्पिरेशनल है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत पावरफुल ऑरा है जिसका, मे बी एट स्पिरिचुअल लेवल you're very powerful, you're very influential when it's about convincing your points. फायर है, मैं फायर है, उस प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं। वाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर उस फायर को किसी अच्छी जगह पे उपयोग करेंगे तो वो शक्ति बनेगा, और अगर उस फायर को गलत जगह प्रयोग करेंगे तो वो डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। सो चॉइस इज़ योर्स, फ्री विल सबको दी गई है, और एनर्जी बैलेंस ज़रूर होता है। फायर अट्रैक्ट्स द सोल, हेल्पिंग इट फाइंड इट्स वे थ्रू डार्कनेस टुवर्ड्स वार्मथ एंड लाइट। द लाइफ एनहांसिंग एंड alchemical properties of fire, मतलब choice is your alchemist. I'm connected to somebody who's an alchemist. मतलब कितनी भी प्रॉब्लम दे दो, उसको कैसे वाइट लाइट में बदल देना है वो आपको बहुत अच्छे से आता है। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज हैं, फिजिकल मटेरियल एज वेल, लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी मटेरियलिस्टिकली बहुत अबंडेंट है या होने वाले, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। The appearance of this card in a reading indicates that potential for transformation and spiritual growth. आपकी बहुत किसी लाइफ की किसी स्पेसिफिक परिस्थिति या स्पेसिफिक सिचुएशन से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, अगले स्टेप पे आप गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है शायद आप स्ट्रगल कर रहे हो, पर जो आपकी आत्मा है ना, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है। आपको ऐसा लग रहा है जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझसे बहुत दूर है एज पर माई करंट पाथ, और ये एक रिमाइंडर है कि वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। रीडायरेक्शन हुई है, कोई रिजेक्शन हुई है, समथिंग लाइक दैट, मर्करी रेट्रोग्रेड, कुछ एरर्स, कुछ कम्युनिकेशन, समथिंग लाइक दैट। The Hindu text says that the Agni exits not only as fire but as lightning and the sun itself. Lightning is a symbol for sudden illumination that emerges unexpectedly. कुछ sudden situations हुई हैं, कुछ sudden scenarios आपकी लाइफ में अचानक से आए हैं, आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करे थे, आपने कभी सोचा नहीं था। आई बीन कनेक्टेड टू समबडी जिसको सबके अंदर लाइट नज़र आती है, एंड आई थिंक यू बीन बिट्रेड और यू बीन बैकस्टैब्ड, समथिंग लाइक दैट। कुछ इस प्रकार की एनर्जीज हैं आपके आसपास या आपकी सिचुएशंस में। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो अनएक्सपेक्टेडली हुआ है, जो आपको एक नई ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। कुछ इमोशनल स्टॉर्म है, आंधी तूफान प्रकार की एनर्जीज आ रही है, और अग्नि इज द पावर टू सी विद क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी है सबकॉन्शियसली, प्रैक्टिकली, इमोशनली, मटेरियलिस्टिकली, सिचुएशनली, प्रैक्टिकली, हर तरीके से। और कुछ इंटेंस सिचुएशन है, स्टबन प्रकार के पैटर्न्स हैं जो परमानेंट तो बिल्कुल नहीं है। दिस इज वाई वन रीजन वाई काली इज नोन एज द फर्स्ट फॉर द सेवन टंग ऑफ अग्नि, द डिवाइन फायर, द जोल्ट ऑफ अर अपराइजिंग विजडम। आपकी विजडम बहुत अपग्रेड कर रही है, और कुछ सडनली हुआ है, सडनली। The severity of her suddenly bestowed clarity can burn down the house we have built. We can no longer sustain a comfortable delusion. कुछ delusional प्रकार की situations आपके साथ हुई थी, सोचा कुछ, हुआ कुछ, निकला कुछ, उस प्रकार की। I've been connected to somebody who is very very pure, very very भोला. That's your biggest power. आपको carried away होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी भावनाओं पे विश्वास रखिए, अपने पथ पे विश्वास रखिए। चेंज थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान है। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, और अपनी अप्रोच सिचुएशंस को लेकर थोड़ा सा अलग करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास अब कुछ नया इन्फॉर्मेशन आने वाला है या अवेलेबल है। ये बहुत ही छोटा सा टेम्परेरी सा लॉस था, ताकि आपको एक बहुत बड़ा फ्रीडम और ग्रेटर
victory मिल सके in all your levels of life. Very beautiful energies. As the sun, the Agni represents the light that ends the darkness. डार्कनेस को मिटाया आपने, भ्रम को, झूठ को, उस प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं. Kali, the divine mother of dark grace, is the first of the tongues of divine fire. This is the key to Kali's mysteries. और यही उनका तरीका है, mysteries, you know, intuitively, spiritually, emotionally, practically, beautifully, illusionally, delusionally, confusingly. पाथ तो वाइट है, लाइट है. बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं. अगर आप किसी भी प्रकार से लग रहा है कि किसी डार्क फेस से जा रहे हैं, सिचुएशंस आपकी फेवर में नहीं है, कुछ दुख दर्द तकलीफ या कोई बैक स्टैब हुआ है या कोई भ्रम टूटा है, ये पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान है. कुछ पास्ट कॉर्ड्स होंगे, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस होंगे. स्पिरिचुअली इनलाइटेंड होने का मतलब अपने एक्सपीरियंसेस को चेंज करना नहीं होता, उनको समझना होता है, ताकि आप आत्मिक स्तर पे और ज़्यादा ग्रो कर सकें. यही तो मिस्ट्री है माता काली की, और हम उनको ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर हर सिंप्लिसिटी, फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट समटाइम्स the only in moving through the darker times that we become aware of what is needed to live with more light. होता है ना, आप मे बी आप कनेक्टेड हो somebody who is an anointed one. आपकी जो फियर्स, प्योर सोल या एनर्जीज हैं, वो जहाँ पर भी डार्कनेस होती है, इंटिमिडेशन हो जाती है, समथिंग लाइक दैट. एज अ टंग ऑफ फायर, काली consumes all offerings. She is divine capacity to receive our prayers, our pains, our craziness, and our graceful heroism. हाँ, you're a hero or a heroine. मतलब आपका तो कोई जेंडर ते हुंदा नहीं है, लेकिन take what resonates for you. She receives it all. She not only receives it, but as fire, she transforms the offering so it can nourish, heal, purify the soul. Every experience is beautiful. वेरी वेरी ब्यूटिफुल. सो अगर आप किसी ऐसी घनी परीक्षा से निकल रहे हैं जहाँ पर आपको ब्रूटल एक्सपीरियंस हुआ है या कुछ सोल शॉकिंग एक्सपीरियंस हुआ है, पार्ट ऑफ द प्लान है. जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वैसा हुआ, और आपको ये सब चीज़ें पहले से आती नज़र आ गई थी. तो आपके डिल्यूजन्स को तोड़ने की आवश्यकता थी, तो माता रानी ने अपने मिस्टीरियस रूप में रास्ते बदले हैं. इस प्रकार की एनर्जीज हैं. दिस इज डिवाइन फेमिनिन alchemy. Kali is the divine alchemist, and because she is a tantric goddess, we offer her even our most broken and messed up selves with a sense of humility. She will accept the offering and manifest grace from it. You can do anything. Transmute the darkness into light. Give it to the universe, and you shall receive. कितने भी प्रकार की सेल्फ डाउट, कन्फ्यूजन सिचुएशंस, वो आपको बिल्कुल जज नहीं करेंगे. आप वहीं से शुरू कर सकते हैं जब आप तय कर लें कि आपको आगे बढ़ना है. माता रानी आपको हर पल रास्ता दिखाती हैं. एवरी सेकेंड. There is a deeper purpose to making an offering, the opening up of a channel between ourselves and the divine. The divine does not need to be loving or wanting to help us. It is a human that needs help dragging the mind away from fixation on what is wrong into openness and presence, what allows for divine grace to flow and for us to receive it. While the offering appears to be about what we are giving, it is enabling the capacity to receive. Energy balance. आपकी इंटेंशन क्या है? प्यार, मोहब्बत, लाइट, या फिर किसी चीज़ में आप फिक्सेटेड हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं. फील लाइक बीइंग कॉल्ड टू से अ हैंगमैन एनर्जी. रुका हुआ महसूस कर रहे हैं. इट मे सीम लाइक ऑफरिंग आर, बट अ ट्रू ऑफरिंग इज हार्ड टू गिव. It is hard because it requires that we shift our presence, our state of mind and being. The more we do this, the greater the offering. It matters less what is in the form of our offering is indeed so true.
वो तो हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, आपकी प्रेजेंस मांगती हैं, पथ पे चलने की हिम्मत मांगती हैं। ऑफरिंग के लिए आपके पास कुछ भी हो मटेरियलिस्टिक लेवल पे, अगर आत्मा में प्योरिटी नहीं है तो ना हो पाएगी। However, you must be prepared to enter into a sacred fire to make the appropriate offering. The oracle asks you to shift from focusing on what isn't working to immersion. आप उन चीज़ों पे जाने जाने में ध्यान दे रहे हैं जो वर्कआउट नहीं हुई हैं। आपको उस जगह पे ध्यान देने की ज़रूरत है जो आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं in terms of an upgrade which will take you to the new level of spiritual growth, not only spiritually but also practically. All can be resolved and shall manifest according to her loving grace. Very beautiful energies.